Myself, Gopal. I'm working with Reliance Foundation from last 5 months. एंड इन एग्रीकल्चर पिछले मैं लगभग 5-6 साल से एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहा हूँ एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन challenges and innovation in basmati rice cultivation. As we all knows, basmati rice uh, is a long grain aromatic variety of rice prized for its delicate flavor and aroma. It is staple food in India and Pakistan and is also very popular in other parts of the world. However, the cultivation of basmati rice faces a number of challenges, including climate change, water scarcity, and pest and diseases. In this presentation, we will discuss these challenges and explore some of the innovations that are being developed to address them. Firstly, I'll talk about no, the area of cultivation. The area of basmati rice production in India are the states of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Delhi, Uttarakhand, and Western Uttar Pradesh. India is the leading exporter of basmati rice, as we all knows in global market. The country has exported 45 lakh 58,972.23 metric ton of basmati rice to the world, which worth rupees 38,524.11 crore during the year of 2022 and 2023. Major export destinations of India are Saudi Arab, Iran, Iraq, United Arab, and Yemen. Uh, Challenges of basmati rice cultivation. There are many challenges, but we will discuss on climate change, water scarcity, cost of cultivation, pest and diseases, soil degradation, labor shortage. As we all know, climate changes is the major threat for basmati rice cultivation. Rising temperature and the changes in the rainfall pattern can lead to decrease the production and lower quality of grains. जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्राउंड वाटर है is decreasing day by day, and which is a major challenge for rice cultivation farmers, and pest and diseases also put effect on basmati cultivation. And nowadays farmers are using excessive doses of fertilizer and chemicals, which is the major cause of soil degradation. We will talk on labor shortage also, pest and diseases also in next slides, which are the major pest and diseases. Firstly, I'll talk about on climate changes. What effect what are the effects of climate changes on basmati rice cultivations? The optimum temperature for basmati rice cultivation is 25 to 35 degrees Celsius. But at the flowering time, temperature should be 30 to 33 degrees Celsius. If अगर उस समय जो टेम्परेचर है वो राइज करता है 33 से या 35 से, देन मेल विल स्टरलाइल और स्टिग्मा विल आल्सो डेड, जिसका सीधा प्रभाव which will put effect on directly crop production yield. जो फ्लावरिंग टाइम होता है उस समय जो जो ग्रेन होता है वो लगभग 30 मिनट के लिए ओपन होता है. वी विल ओपन रिमेन 30 मिनट्स. तो उस समय अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो उसका या तो उसका मेल पार्ट है वो स्टेराइल हो जाएगा या स्टिग्मा डेड हो जाएगा. लेकिन जो नेचर है वो भी अपना खेल खेलता है, जैसे कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस समय ये क्या करता है, जो क्रेन है वो अपने समय से पहले ही ओपन हो जाता है ताकि उनकी मीटिंग हो सके, पोलिनेशन हो सके.
So some of the farmers, like they are transplanting basmati rice, समय से पहले वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसका इफेक्ट ये रहता है कि जब फ्लावरिंग टाइम आता है तो टेम्परेचर हाई रहता है, जिसके कारण जो प्रोडक्शन है वो कम रहता है, क्योंकि उसमें ग्रेन नहीं बनता, तो प्रोडक्शन अपने आप ही ऑटोमेटिक ही कम रहता है। हमने देखा है कि पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ है। जो पूसा बासमती की किस्म वैरायटी है एक PB1। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे फार्मर्स ने ट्रांसप्लांटिंग थी वो पहले कर दी टाइम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो वेदर है वो डे बाय डे चेंज हो रहा है। समय के बाद में विंटर चल रहा है और जो गर्मी है वो भी डिले हो रहा है। इस साल भी क्या हुआ है, अप्रैल तक अभी ठंड ही रही। अभी मई में आकर थोड़ी गर्मी शुरू हुई है। तो जो वेदर है वो बहुत ही इम्पेक्ट डालता है बासमती राइस कल्टीवेशन पे। तो मैं बात कर रहा था कि जब फार्मर्स ने वो पहले उसकी ट्रांसप्लांटिंग की, तो उसका जो फ्लावरिंग स्टेज थी वो ज़्यादा गर्मी में आई, और उसकी वजह से उसमें ग्रेन नहीं बने, तो प्रोडक्शन कम हुआ। और अगर इफ वेदर बिकम क्लाउडी और रेनफॉल वाली हो, तो वेदर उस समय जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें ग्रेन डिस्कलरेशन भी हो जाता है। उसमें डिजीज का अटैक भी ज़्यादा आता है, जैसे कि ब्लास्ट डिजीज बहुत ही डेंजरस डिजीज है बासमती की, तो वो भी ज़्यादा आती है। अगर वेजिटेटिव टाइम टिलरिंग स्टेज पर टेम्परेचर कम रहता है, ज़्यादा कम रहता है, तो भी टिलरिंग की ग्रोथ नहीं होती, टिलर्स कम आते हैं। तो बेस्ट टेम्परेचर फ्लावरिंग टाइम के लिए 30 से 33 डिग्री सेल्सियस है। और अब बात करते हैं अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड की। ये जैसे कि हमने पहले बात की कि ग्राउंड वाटर है जो हमारा दिन ब दिन कम हो रहा है, उसके लिए जो ICR है उन्होंने एक टेक्निक प्रैक्टिस करके देखी, एक टेक्निक कर। तो उसका नाम है अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाउमन्स ट्यूब ली एक, जैसा कि आप उसी स्लाइड में देख रहे हैं। बाउमन्स ट्यूब ली, उन्होंने इसमें होल्स किए, और उस इसमें मिट्टी में गड्ढा निकाल कर उसमें इसको पुट कर दिया। तो इसमें उन्होंने 30 सेंटीमीटर की ये ट्यूब ली थी, 10 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड रखी थी और 20 सेंटीमीटर बिलो द ग्राउंड रखी थी। जब उन्होंने एक बार फ्लड कर दिया, फ्लड करने के बाद जब पानी इस वोमेंस ट्यूब के बिल्कुल नीचे चला जाता है, तो उन्होंने बाद में इसमें दोबारा फ्लडिंग की। रेगुलरली उन्होंने ये प्रैक्टिस की। इससे उन्होंने ये देखा कि इसमें एक तो पानी की कंजप्शन बिल्कुल कम हो रही है। लाइक वी ऑल नोज दैट 1 kg राइस प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 से 4,000 जो पानी है लीटर लग जाता है। तो इसमें लगभग 500 लीटर की हमें बचत हुई पानी की। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है अगर हम अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग मेथड इसमें यूज़ करें। लेकिन अ, जो मेरी रिसर्च कहती है, जो मैंने कुछ पिछले सालों में देखा है कि ये मेथड ठीक है, लेकिन जो सैंडी सॉइल्स हैं जिनमें राइस लगता है, फार्मर्स लगाते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, उन्होंने उन्होंने उस जगह पर ये टेक्निक इतनी कामयाब नहीं है, क्योंकि सैंडी सॉइल इस ट्यूब में से पहले ही पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो मेनली अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का ये मतलब है कि जब पानी जमीन पूरा अब्जॉर्ब कर ले उसके बाद ही पानी लगाएं। अगर हम लगभग 5 सेंटीमीटर तक पानी खड़ा रखते हैं लगातार अपने फील्ड में, उससे क्या होता है, एक तो पानी हमारा ज़्यादा लगता है, उसमें वाटर वेपोरेशन हो जाती है, और दूसरा ये रहता है कि जो हम उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, यूरिया डालते हैं या कुछ और डालते हैं, वो प्रॉपर हमारे क्रॉप को नहीं मिलता। और इसके साथ साथ अगर हम 5 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखें लगातार, तो लगभग 1 एकड़ में 3 लाख लीटर पानी उसमें खड़ा रहेगा।
तो इस प्रकार हम अपने पानी की बचत कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें ये बोमेंस ट्यूब लगानी ही लगानी है। आप जब ज़मीन अब्ज़ॉर्ब कर ले, उसके बाद में आप दोबारा पानी उसमें लगा सकते हैं। और जब हम पानी ज़्यादा खड़ा रखते हैं, तो उसमें डिज़ीज़ के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जो हम पिछले सालों में देख रहे हैं कि बकाने डिजीज, ये बहुत ही मेन डिजीज के मेजर डिजीज बोल सकते हैं हम इसकी, बासमती की। ये ज़्यादातर बासमती में ही आती है, और पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि ये बहुत बढ़ रहा है, और इसका कोई अभी तक सोल्यूशन भी नहीं मिला। ये एक फिजेरियम फुजिक्रोई नाम की जो फंगस है, उसके कारण होता है। सीड और सोइल बोर्न डिजीज है ये। This fungus infects plants through the roots, then grows systematically with the plants. ये उनकी रूट्स के जरिए, रूट्स और क्राउन के जरिए उसमें इंटर करती है, और उसके बाद में सिस्टेमेटिकली प्लांट्स में आगे बढ़ती रहती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स आर एबनॉर्मली टॉल। सिम्टम्स की बात करें अगर इसके, तो जो abnormally tall with pale, thin leaves, produce fewer tillers, and dies without any production। जो इसके प्लांट होते हैं, वो जैसा कि आप मेरी स्लाइड में भी देख रहे हैं कि ये समय से पहले अपने आप मेच्योर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इनमें कोई टिलर्स ज़्यादा नहीं निकलते, जो इनकी पत्तियां हैं वो बारीक रहती हैं, और उसके साथ साथ ये प्रोडक्शन भी नहीं देते, ये समय से पहले ही मर जाते हैं। और इसके जो दूसरा एक सिम्टम है, जैसा कि आप तीसरे वाली फोटो में देख रहे हैं कि एक वाइटिश पाउडर टिलर्स पर दिखाई दे रहा है, ये भी इसका एक सिम्टम है। अगर इंडिया की बात करें, तो अभी तक ये रिकॉर्ड हुआ है कि अप टू 15% ये डिजीज हमारी प्रोडक्शन का लॉस कर सकती है। आप ये भी इसमें साइड में देख रहे हो कि जब ये बीमारी आती है, इसका हमला होता है, तो जो रूट्स हैं, वो जो नोड्स होती हैं, जड़ से ऊपर वाली नोड्स होती हैं, उसके ऊपर भी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती हैं। द डिजीज ऑकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली व्हेन इन्फेस्टेड सीड। जब हम बीमारी वाले खेत से ही बीज लेते हैं, तो ये बीमारी अगली फसल में ज़्यादा आती है। But also can occur when the pathogen is present on the plant material or in the soil. It spread through wind or water that carries the fungal spores from the plant to another। ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट में भी चली जाती है। ये एक फंगल है, विंड के जरिए भी आगे चली जाती है, या जो भी हम कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें, अपनी फसल में, बासमती में, उसके जरिए भी ये आगे प्लांट्स में चली जाती हैं। बकाने कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग फार्म ऑपरेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कल्चरल प्रैक्टिसेस, फार्म ऑपरेशन जो भी हम करते हैं, उसके जरिए भी आगे चली जाती है। सच एज हार्वेस्टिंग इन्फेक्टेड प्लांट्स, अलोइंग फंगल स्पोर्स टू स्प्रेड टू द हेल्दी सीड्स एंड सोकिंग सीड्स इन द वाटर दैट कंटेन्स द फंगस। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि इन्होंने बताया कि हार्वेस्टिंग के जरिए भी, जब हार्वेस्ट करते हैं, उसके जरिए भी ये दूसरे ग्रेन्स पर चली जाती है, तो उसके साथ साथ ये अगली फसल पर भी हमला करती है। और इसे फुट रोट भी बोलते हैं बकाने को, और कई जगह पर इसे लाइक झंडा रोग भी बोलते हैं। इसे मैनेज कैसे किया जाए? सबसे पहले तो ये है कि हमें वी शुड यूज क्लीन सीड्स टू मिनिमाइज द occurrence ऑफ द डिजीज। जहाँ से हम सीड लेते हैं, वो हम चाहे अपने ही खेत से ले रहे हैं, उसमें ये रोग नहीं होना चाहिए। अगर ये रोग होगा, तो अगली फसल में आएगा ही आएगा। यूज salt water to separate lightweight infected seeds during soaking। जब हम पानी में बीज भिगोते हैं, तो जो लाइट वेट रहता है, लाइट वेट वाले ग्रेन्स होते हैं, उनको पहले निकाल देना चाहिए। डू नॉट प्रिक्योर सीड फ्रॉम द डिजीज फील्ड। मैंने पहले बताया है आपको कि हमें बीमारी वाले खेत से कभी भी बीज नहीं लेना। ट्रीट ट्रीट द सीड विद ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 15 ग्राम पर केजी सीड इमीडिएटली बिफोर सोइंग।
सोइंग से पहले ट्राइकोडर्मा से हम बीज को ट्रीट कर सकते हैं 15 ग्राम पर केजी, और उसके साथ साथ जब ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है तो हम जो सीडलिंग की रूट्स हैं उनको हम डिप कर सकते हैं इसी के सोल्यूशन से, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम के सोल्यूशन से 15 ग्राम पर लीटर वाटर में 6 घंटे के लिए हमें इनको डिप करके रखना है, इनकी रूट्स को। इससे क्या होता है कि जो इन्फेक्शन रहता है जड़ों में, उनको उखाड़ने के समय जब हम सीडलिंग उखाड़ते हैं तो उसके ऊपर ये एक लेप बन जाता है इस बीमारी जो ये फंगस है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम का, तो उसको वो जो आगे नहीं फैलता, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो जाता है जब हम रूट्स को उखाड़ते हैं सीडलिंग को ट्रांसप्लांटिंग के लिए। उखाड़ने उखाड़ने के टाइम इन्फेक्शन होता ही होता है, क्योंकि जड़ें रूट्स टूटती हैं उसमें। तो उसके लिए हमें जो सीडलिंग की रूट्स हैं उसको भिगोना ही चाहिए। और सबसे आसान तरीका है कि अगर इसको खत्म करना है, खत्म तो नहीं हो सकती लेकिन अगर काफी हद तक निजात पाना है इससे, तो डीएसआर टेक्निक का हमें यूज करना चाहिए। उससे यह देखा है पिछले 4-5 सालों से जब से ये टेक्निक आई है, 90 to 95% फील्ड में ये दिक्कत नहीं आ रही। 90 to 95%। तो ये टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जैसे पहले बात की थी कि ब्लास्ट इज ए मेजर डिजीज। इट इज कॉज्ड बाय फंगस मैग्ना पोर्थियोजाई। It can be affect all above ground parts of a rice plant, leaf, collar, node, neck, parts of panicle, and sometimes leaf sheath. ये किसी भी पार्ट पर अटैक कर सकती है जो ब्लास्ट डिजीज है, और किसी भी समय कर सकती है। ये नहीं है कि ये जब टिलरिंग स्टेज होगा तब करेगी, या पेनिकल इनिशिएशन होगा तब करेगी, बूटिंग स्टेज पर होगा तब करेगी, क्योंकि ये लीफ, कॉलर, नोड, एवरी पार्ट पर ये अटैक करती है। अगर मैं बात करूं लीफ ब्लास्ट की, तो आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाली दो पिक्चर्स हैं, इस तरह के इसके सिम्टम्स होते हैं, जो स्पिंडल टाइप के हम बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो लेसन्स बनते हैं स्पिंडल टाइप्स के होते हैं। पहले तो बीच में से वो थोड़े वाइटिश होते हैं, ग्रेइश होते हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो ओल्ड होते जाते हैं तो जो उसका बीच वाला एरिया है लेसन्स का, वो ब्राउन होता जाता है। और जैसे जैसे ये इनलार्ज होते हैं तो ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, बड़ा लेसन उससे बन जाता है। और सेकंड बात करें हम कॉलर कॉलर ब्लास्ट की, जहाँ से कॉलर बनता है वहां से पत्ता निकलता है, वहां से ब्राउनिश हो जाता है, उसके बाद में ये ब्लैकिश हो जाता है स्पॉट। ऐसे ही नोट ब्लास्ट है, जो गांठें होती हैं बासमती के टिलर्स की, उसके ऊपर ये अटैक करती है। उसके साथ क्या होता है कि जो गांठें होती हैं पहले तो वो ब्राउनिश होती है, उसके बाद में ब्लैकिश होने लगती हैं, और सारी की सारा ही जो पौधा है ऊपर से टूटने लगता है। चौथी है नेक ब्लास्ट। ये जब इसके स्पाइक्स निकल आते हैं उसके बाद में ही आती है इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्राउनिश हो जाता है, जैसे मैंने बताया नोड ब्लास्ट में ऐसा होता है, और उसके बाद में ये टूट जाती है, उसमें दाना ही नहीं बनता, ग्रेन बिल्कुल खाली रह जाते हैं उसकी। तो ये एक बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है प्रोडक्शन में इसका। इसे मैनेज कैसे करें? सबसे पहले तो यही है कि फार्मर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन यूज़ करते हैं। उनके मन में यही है कि अगर हम नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी हमें मिलेगी, बट ऐसा नहीं है। जो रिकमेंडेड फर्टिलाइजर्स हैं उतने ही हमें यूज़ करने चाहिए, उससे ज़्यादा हमें नहीं करने चाहिए। अगर एक्सेसिव डोज उसकी यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ यही नहीं कि ब्लास्ट डिजीज, उसके साथ साथ पेस्ट अटैक भी ज़्यादा आता है, और भी डिजीज उसमें ज़्यादा अटैक करती हैं। कभी भी सूखा ड्रॉट कंडीशन मत आने दें फील्ड में। अगर ड्रॉट कंडीशन आएंगी उसके साथ साथ ये बीमारी के आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हम इसके लिए सिलिकॉन फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, जिनमें सिलिकॉन डेफिशिएंट सॉइल हैं उनके उनके लिए कर सकते हैं। बिकॉज
ये बहुत ही कॉस्टली है। हम इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो आम फार्मर है अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हमारे पास इसका एक चीप सोर्स भी है सिलिकॉन का। जैसे पैडी स्ट्रा है, अभी तो बहुत सीआरएम मैनेजमेंट पर, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर काम चल रहा है, तो हम वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड में ये बीमारी पहले आ चुकी है, उसमें वो हमें उसका सीआरएम नहीं करना चाहिए, इनकॉर्पोरेट नहीं करनी, उसकी जो स्ट्रॉ है उसको बीच में ही नहीं दबाना चाहिए। क्योंकि अगर हम वो बीच में उसको करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो ये बीमारी आगे वाली फसल में ज्यादा आएगी। अगर चौथा देखें तो इसे हम केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं इससे। बट सॉरी, बट जब ये नेक ब्लास्ट आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये चार तरह की होती है: लोअर ब्लास्ट, कॉलर ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट। जब नेक ब्लास्ट आती है तो आने के बाद ऐसा रहता है कि बहुत कम इसका कंट्रोल हो पाता है। इसलिए एक तो जब गोब में होता है, बूट स्टेज में होता है, तो प्लांट्स, तब हम डॉक्सीट्रोबिन और डाइफेनाकोनजोल की एक स्प्रे कर सकते हैं 200 ml पर लीटर। 200 लीटर पानी में ही करनी है, याद ये रखिएगा। इस ये आम एम स्टार टॉप पर बहुत ये फेमस है ये प्रोडक्ट। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी के साथ साथ जिनेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो बूट स्टेज पर, और जब ईयर इमरजेंस हो तब हम इनका स्प्रे करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट मिलेंगे इसके। मैंने पहले बात की थी डायरेक्ट सीडेड राइस की, कि पहले हमने जो बुकाने डिजीज की बात की थी। अगर हम डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड का यूज करेंगे सोइंग के लिए, तो उसमें बहुत कम, 1 से 2% ही ऐसी फील्ड होगी जिसमें बुकाने डिजीज आएगा, फुट रॉट की दिक्कत आएगी। बिल्कुल भी नहीं आती कई खेतों में। तो इसके फायदे क्या क्या हैं? जैसे कि आप एक तरफ तो देख रहे हैं कि लक्की सीड ड्रिल इस्तेमाल करते हैं। ये जो मशीन है लक्की सीड ड्रिल डायरेक्ट सीड राइस के लिए, ये साथ साथ एक तो सोइंग करती है, दूसरा प्री इमरजेंस अगर हमने कोई हर्बिसाइड यूज करना है, ये तो ये उसकी भी स्प्रे कर सकती करती है। अब एडवांटेजेस की बात करते हैं। इसमें कोई भी यील्ड का लॉस नहीं होता। कई फार्मर ये सोचते हैं कि ये नई टेक्निक है, इससे हमारा यील्ड का लॉस होगा, प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके, कोई भी यील्ड का लॉस नहीं होता। पानी की सेविंग होती है, वाटर वाटर सेव होता है, 12 से 35% तक इसमें वाटर सेव होता है। लेबर कॉस्ट कम होता है, क्योंकि हम ट्रांसप्लांटिंग के लिए पहले उसको सोइंग करते हैं नर्सरी की, उसके बाद में उसी को लेबर चाहिए लगाने ट्रांसप्लांट करने के लिए, वो खर्चा इसमें नहीं होता। और इसमें कल्टीवेशन टाइम रिड्यूस होता है, एनर्जी रिड्यूस होती है, जो हम लागत करते हैं, कॉस्ट भी, जैसे कॉस्ट कटिंग होती है इसमें, क्योंकि जब लेबर का यूज कम रहेगा तो उसमें हम ऑटोमेटिक ही कॉस्ट कटिंग होगी। इसमें प्लांट को कोई स्ट्रेस नहीं होता। जब हम प्लांट ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसा रहता है कि उसको दोबारा ग्रोथ करने के लिए वो थोड़ा टाइम लेता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फार्मर्स कुछ ऐसा करते हैं कि ट्रांसप्लांट करते हैं लेकिन डीप कर देते हैं, ज्यादा डीप कर देते हैं। उसमें क्या रहता है कि वो प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है और उसको कुछ टाइम लगता है ग्रोथ करने के लिए। तो लास्ट इसका ये फायदा है, एडवांटेजेस है कि इंक्रीज टोटल इनकम। इसमें टोटल इनकम इंक्रीज होती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम रहता है। अब इनोवेशन की बात करते हैं कि क्या इनोवेशन होना चाहिए बासमती में। एक तो ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज नहीं आनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज है जैसे PB 1509 है, 1692 है। लेकिन कुछ वैरायटीज इसकी ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं, जैसे PB 1401।
1401 ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो इसका जो स्ट्रा है वो भी बहुत ज़्यादा रहता है। उसका सीआरएम करना भी बहुत उसको दिक्कत आती है। तीसरा इसमें बायोटेक्नोलॉजी जेंटली मॉडिफाइड वैराइटीज़ होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, वही हो गया, ड्रॉट रेजिस्टेंट होगी, पेस्ट एंड डिजीज़ रेजिस्टेंट वैराइटीज़ होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक प्रिसिशन एग्रीकल्चर हमें इसमें करना चाहिए। व्हाट इज़ प्रिसिशन एग्रीकल्चर? इसका मतलब होता है कि सही समय, सही टाइम और सही प्रोडक्ट हमने क्या यूज़ करना है। प्रिसिशन एग्रीकल्चर की ये तीन ही मेन बातें हैं: राइट थिंग, राइट टाइम, राइट प्लेस। अगर हम ये तीन चीज मिलाकर चलेंगे तो एक तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होगा, तो उससे पानी भी बचेगा। अगर हम बेफालतू का उसमें फ्लडेड करते रहें, फ्लड इरिगेशन करते रहें, उसका कुछ फायदा नहीं होगा। ये चीजें भी, अभी ड्रोन आ गया है, ड्रोन के जरिए हम स्प्रे कर सकते हैं, फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें, प्रिसिशन एग्रीकल्चर, जीपीएस के जरिए, जीपीएस सॉरी, सैटेलाइट के जरिए हम अपने जो वेजिटेटिव इंडेक्स है उसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में अभी क्या दिक्कत है। उसमें कलर्स के अकॉर्डिंग वो दिक्कत हमें शो करता है। अगर बहुत सारी ऐप्स आती हैं ऐसी जो ये इस पर काम कर रही हैं। और जो लास्ट है, प्रोसेसिंग यूनिट बाय फार्मर्स, ये बहुत एरिया से देखा गया कि जो फार्मर है वो प्रोडक्शन तो इसकी करते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली नॉर्मल जो बिचौला होता है उसे बेच देते हैं, मिडल मैन को बेच देते हैं। फायदा ज्यादा मिडल मैन को होता है और फैक्ट्रीज को होता है। इसलिए गवर्नमेंट एफपीओ है हमारे इंडिया में, काफी एफपीओ है, लेकिन इस पर और काम होना चाहिए। एफपीओ बननी चाहिए, उसके साथ साथ एक यूनिट ऐसे लगने चाहिए कि फार्मर अपना प्रोसेस कर सके और उसके साथ साथ अपना टैग देकर वो मार्केट में बेच सके, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्राइस बहुत ज्यादा है और इसकी प्रोडक्शन बहुत कम है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये चीजें, इनोवेशन इसमें होनी चाहिए अभी। और अब बात करते हैं अदर चैलेंजेस की। अगर अदर चैलेंजेस की बात करें तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पहले ही बात की हमने, सोइल डिग्रेडेशन, लेबर माइग्रेशन हो रही है, फार्मर एजुकेशन होनी चाहिए, प्राइस, क्रॉप रेजिड्यू। अगर हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो ड्यू टू यूज ऑफ एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, वो बहुत करते हैं इसका यूज। इसके कारण क्या, कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स अभी ज्यादा तक डिपेंडेंट हैं जो डीलर्स हैं, पेस्टिसाइड डीलर्स हैं, उन पर। उसका कारण ये है कि वो क्रेडिट पर प्रोडक्ट उनसे परचेज करते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है कि जो डीलर्स होते हैं उनके अपने खुद के टारगेट्स होते हैं। वो उन टारगेट्स को मीट करने के लिए फार्मर को बहुत ही एक्सेसिव मात्रा में फर्टिलाइजर और केमिकल्स यूज करवाते हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर फार्मर एजुकेट हो तो ये दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा इसमें सॉइल डिग्रेडेशन, जैसे पहले बात की कि फार्मर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वही एक कारण है कि सॉइल डिग्रेडेशन भी हो रही है, पोल्यूट हो रही है हमारी सॉइल। तीसरा, लेबर की दिक्कत आ रही है। लेबर, क्योंकि जो हमारी कल्टीवेशन है वो होती है सीजनली, जैसे जब उसको ट्रांसप्लांट करना है तब ये दिक्कत आ रही है, या उसकी हार्वेस्टिंग करनी है तब लेबर चाहिए। तो जो लेबर है वो ज़्यादातर माइग्रेट हो रही है शहरों की तरफ। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है फार्मर्स के लिए। और फार्मर को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। फार्मर एजुकेशन इज मस्ट, because they know more about their field than others. Most of the farmers never learn from their mistakes. वो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते। कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग्स। वो सेम, एक बार कोई दिक्कत हो गई, वो दोबारा फिर उसी चीज को दोहराएंगे, उसी चीज को दोहराएंगे। तो ये दिक्कत तो बहुत ज्यादा आती है। अगर फार्मर
क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो फार्मर का फील्ड है उसका साइंटिस्ट खुद फार्मर है। अगर फार्मर कुछ अ, नई वैरायटी लगा रहा है या कुछ नया प्रोडक्ट यूज कर रहा है, अगर उसको उसका रिजल्ट नहीं मिला, प्रोडक्शन उसकी डिक्रीज हो रही है या प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, तो उसको थोड़ा हटके करना चाहिए उससे। लेकिन फार्मर क्या करता है कि जैसे कोई नई वैरायटी आ गई, सभी तरफ होड़ लग जाती है कि नई वैरायटी आ गई कि आ, हम ये यही लगाएंगे यही लगाएंगे। एक तो उसकी वो सही बीज नहीं मिलता। दूसरा ये रहता है कि कई बार ऐसे रहता है कि हर बीज, हर तरह की मिट्टी है उस पर वो कामयाब नहीं होता। कई जगह पर वो कामयाब होता है। जैसे अब मैं अगर पंजाब की बात करूं तो पंजाब में अभी सावा की एक वैरायटी है 7301। इसके पीछे फार्मर आर रनिंग बिकॉज उसकी प्रोडक्शन बहुत जाता है। लेकिन हाँ, ट्रायल के लिए लगाओ, 1-2 एकड़ लगाओ, उसके साथ क्या होगा कि आपका खुद का बीज भी हो जाएगा घर का, और आपको आपका ट्रायल भी हो जाएगा कि उसने आपको कितनी प्रोडक्शन दी, क्या उसके ऊपर कॉस्ट आई। लेकिन फार्मर ऐसा नहीं करता। वो बस जो उसके मन में बैठ गया कि हाँ ये इस बीज का प्रोडक्शन ज्यादा है, वो हर बार वही लगाता है। और सबसे इसमें अहम रहता है प्राइस का, क्योंकि बासमती के ऊपर एमएसपी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका नहीं है। ये कभी भी अप एंड डाउन मार्केट के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं। उसके क्योंकि अब इस बार की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में कुछ जगह पर प्राइस इसका 5200 पर क्विंटल गया। लेकिन पंजाब में जैसे वैरायटी है इसकी PB 1401, उसी की बात कर रहा हूं मैं, उषा बासमती 1401। तो वहाँ हरियाणा में तो 5200 पर क्विंटल गया, लेकिन पंजाब में क्या हुआ कि वो सिर्फ रहा 4700, 4800। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ा चैलेंज है कि गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना चाहिए। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बात की, अगर फार्मर अपना प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो वो बहुत बढ़िया दाम मार्केट में इसका ले सकते हैं। अपना खुद का उसके ऊपर मार्का लगाकर अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट अपना सेल करें, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत है। जो दूसरे हमारी PR वैरायटीज हैं वो तो बहुत ज़्यादा ऑल इंडिया में प्रोड्यूस होती है वो, लेकिन इसकी कल्टीवेशन नॉर्थ एरिया में ही ज़्यादा होती है। और लास्ट हमारा इसका चैलेंज है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। इसमें बहुत सारी वैरायटीज ऐसी हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन लेती है, टाइम उसका ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ उसका स्ट्रॉ भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे PB 1401। तो इसमें क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट की बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि जो छोटे फार्मर हैं, 5 एकड़ तक के, 4 एकड़ तक के, वो बड़ी मशीनें नहीं यूज कर पाते। अगर वो किराए पर, रेंट पर भी लेते हैं तो भी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो फिर भी ज़्यादा होगी। लेकिन कुछ गवर्नमेंट अभी ऐसा भी कर रही है कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट पर सब्सिडी वगैरह भी दे रही हैं, सब्सिडी पे मशीनरी दे रही हैं, बिल्डर दे रही हैं। लेकिन उसका फायदा तो ज़्यादा बड़े फार्मर को होता है, छोटे फार्मर को नहीं होता। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि वो बेलर है वो जैसे सोसाइटीज है वहाँ प्रोवाइड किए जाएं, ताकि जो आम फार्मर है वो भी इसका फायदा उठा सके। हाँ, पंजाब में बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जहाँ पर बेलर अवेलेबल हैं, लेकिन उसी टाइम रश इतना ज़्यादा हो जाता है, रश इन द मीन कि हर फार्मर ये बोलता है कि सबसे पहले मेरा हो जाए, मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। उसी की वजह से फार्मर आग भी लगाता है उसमें। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो मेजर चैलेंजेस हैं बासमती कल्टीवेशन के। अ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई किसी का भी कुछ भी कोई सवाल हो तो प्लीज पूछ सकते हो आप। यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी। सर मुझे ये बताओ। जी सर। हेलो। आई एम जी ऑडिबल। जी जी। या। हाँ, गुरपाल सिंह जी, मुझे ये बताइए आप कि जिस वैरायटी के बारे में आपने मुझे बताया, ये पर्टिकुलर नॉर्थ की वैरायटी है या मतलब हम लोग जहाँ पे भी पैडी सोइंग होती है वहाँ कर सकते हैं?
देखिए, जहाँ पर पैडी सोइंग होती है वहाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये नॉर्थ रीजन में ही इसकी कल्टीवेशन की जाती है। और नॉर्थ की, क्योंकि अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो इसमें नॉर्थ में पर्टिकुलर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और यही है, या फिर ऊपर जो टॉप में JNK में भी पैडी लगती है बहुत ज्यादा, जम्मू जम्मू कश्मीर श्रीनगर में इधर भी लगती है? J&K में भी इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन ज़्यादातर अच्छा। पंजाब हरियाणा में ही ज़्यादा होती है। ओके। और ये पर्टिकुलर मतलब ओपन मार्केट में बिकता है या गवर्नमेंट एजेंसी खरीदती है इसको? गवर्नमेंट एजेंसी भी खरीदती है, लेकिन ये ज़्यादातर ये ओपन मार्केट में ही बिकता है। और जो ये वैरायटी है, ये एक्सपोर्ट की वैरायटी है या लोकल यूज के लिए है? मतलब ज्यादा नहीं यूज नहीं, कहाँ होता है, एक्सपोर्ट में जाता है? एक्सपोर्ट होता है इसका। लोकल यूज़ अच्छा, के लिए ज्यादा भी किसका? यूज़ होती है, ज़्यादातर इसका एक्सपोर्ट ही होता है। ओके ओके। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, Okay. अच्छा था आपका सेशन, थैंक यू। Yeah. थैंक यू। Okay. Thank you, Mr. Umesh, for asking the question. Mr. Gurupal, can you just stop sharing the screen and on your video if it is comfortable for you? या Yeah. So I request you to answer the questions in English so that other participants can also understand. So I'll go to ओके। Mr. Vijay first. Mr. Vijay, if you have any questions, you can ask. Thank you, madam, for the opportunity. Very nice presentation by Gurupal ji. I just had only one question. ओके। One of the slides, precision irrigation was mentioned. So, you have any experience of drip irrigation being used for this variety of basmati rice? Actually, sir, no one in North region did this. Some of the Okay, farmers are doing on ridges, not with drip irrigation. okay. Only AWD, alternate wetting and drying, and the DSR. Because DSR, we are told that drip irrigation is very suitable for it. That's why I just wanted to. But Okay, in sir. North region, farmers are using only alternate bedding dry system. Okay, thank you. Thank you very much. Yeah. Mr. Gurupal, you can stop sharing the screen. Click on Yeah. stop screen sharing. Yeah. And if your video is working, you can on it. I'll go to Mr. Prabhu. If you have any question, you can ask. Mr. Prabhu, you can unmute yourself first, or you can post in the chat box. No questions. Okay. Okay. So I'll take some questions. Yeah. Can you discuss any recent innovations or advancements that have addressed challenges in basmati rice cultivation? अगर मैम, if you talk about a new innovation in basmati rice cultivation, uh, mainly it's DSR technique to save water. Okay. Yeah. Can you elaborate more on this? Little bit. I can explain it more. Yeah. Should I? Yeah. If you talk about DSR technique, इसमें ऐसा रहता है कि ट्रांसप्लांट तो इसमें होता नहीं, डायरेक्ट सोइंग होती है। और इसमें रिकमेंडेड सीड है वो 6 से 8 केजी पर एकड़ है। तो ये, और शॉर्ट टर्म जो वैरायटीज है उनके लिए ये बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें मेजर जो दिक्कत आ रही है डीएसए टेक्निक में वो है वीड्स की। हालांकि इसमें हमारे पास हर्बिसाइड्स तो बहुत है, लेकिन जो वीड्स है वो मेजर प्रॉब्लम बन रहा है डीएसआर में। तो इसमें ऐसा रहता है कि दूसरा, स्पेसिंग बहुत बढ़िया रहती है डीएसआर टेक्निक में। जो डिजीज होती हैं वो ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि उसमें हवा क्रॉस होती रहती है। तो वो भी दिक्कत भी इसमें ज़्यादातर नहीं आती, जैसे शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है वो इसमें कम आती है डीएसआर टेक्निक में, क्योंकि इसमें पानी भी अल्टरनेटिव वेट ड्राइंग मेथड की भी विधि से लगता है। तो जो शीत ब्लाइट है, अगर पानी ज़्यादा खड़ा रहे फसल में तो वो शीत ब्लाइट तब इसलिए ज़्यादा आती है। तो इसमें यील्ड का भी कोई ऐसा नहीं रहता है कि इसमें यील्ड पर कम रहती है, इसमें प्रोडक्शन भी सेम रहती है। और दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो बकाने डिजीज़ है इसमें बहुत ही कम मात्रा में
बकानी डिजीज अटैक करती है, क्योंकि जब हम उसमें ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उसको उखाड़ कर करते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है उनकी जड़ों में, सीडलिंग की जड़ों में। तो नई जगह पर हम लगाते हैं तो उससे दिक्कत आती है। उसमें एक जो जिब्रेलिक हम एसिड यूज करते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के लिए हम यूज करते हैं, जिब्रेलिक एसिड एक रहता है। तो उसमें क्या है, वो नेचुरल प्लांट में ऑटोमेटिक बनता है, लेकिन वो समय से पहले ज्यादा बनता है उसमें, जो उसमें जिस फंगस की वजह से वो होता है उसके जरिए वो ज्यादा बनता है, तो वो समय से पहले ही प्लांट है वो मैच्योर होने लग जाता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर कोई फार्मर को ये दिक्कत आ रही है तो उसे जरूर डीएसआर टेक्निक यूज करनी चाहिए, मेथड यूज करना चाहिए। Okay. जी। Next question. What are the, sorry, how do environmental factors such as water availability and soil quality impact basmati rice cultivation? मैम, क्लाइमेट का अगर हम बात करें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। वाटर के लिए भी रहता है और सोइल के लिए भी रहता है, दोनों की तरह। क्योंकि अगर हम इसको डिले करें, इसकी जो कल्टीवेशन है या इसकी सोइंग है वो थोड़ी डिलेट करें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज यूज करें, उससे क्या होगा कि वी कैन सेव वाटर अप टू 30% तक हम वी कैन सेव वाटर कर सकते हैं उसमें। और अगर सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें, अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज यूज करेंगे, उसमें क्या रहता है कि उसकी जो फर्टिलाइजर डोजेज है वो भी उसमें कम रहती हैं अकॉर्डिंग टू दोज वैरायटीज जो ज़्यादा टाइम लेती हैं। जैसे हम अगर बात करें पूसा बासमती 1509 की बात करें, 1692 की बात करें, ये कम टाइम लेती हैं, इससे पानी भी कम लगता है और फर्टिलाइजर का यूज लेकिन फार्मर तो बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनको ऐसे रहता है कि अगर हम यूज ज्यादा यूज करेंगे, वी यूज मोर फर्टिलाइजर देन वी प्रोड्यूस मोर, देन वी गेट मोर प्रोडक्शन, बट इट नेवर हैपन। सो ये बातें हैं मैम। Okay. And are there any pest or disease management strategies that have been particularly effective in basmati rice cultivation? Yeah, I can talk on cultural practices to control leaf folder. If leaf folder attack in vegetative stage, then we should use a rope. We should हम दोनों तरफ से एक रोप को मतलब दो आदमी उसको पकड़ेंगे और दोनों तरफ से खींचेंगे 2 बार उस रोप को, ठीक है। तो जो उसमें जो लीफ फोल्डर रहता है वो नीचे गिर जाता है, उसमें नीचे गिर जाता है और वो पानी में मर जाता है। उसके लिए कोई भी स्प्रे करने की हमें दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर लीफ फोल्डर का अटैक होता है, ऊपर से बारिश पड़ जाए, तो भी हमें कोई भी उसके ऊपर स्प्रे करने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो जब नीचे पानी में गिर जाता है तो वो दोबारा उसका अटैक नहीं हो जाता, तो वो मर जाता है, अपने आप मर जाता है। और अगर शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है तो उसमें जो पानी है वो मतलब AWD मेथड से ही हमें लगाना चाहिए, और एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि इन्फेक्शन दूसरे खेत में नहीं जाएगा। और कैनाल वाटर भी नहीं, कम यूज करना चाहिए उसमें जब वो बीमारी आ जाती है तो। Okay. And next question. What role do technological advancements play in improving the yield and quality of basmati rice crops? Ma'am, there are many technologies, but the thing is, अगर वेदर अनुकूल है, इफ वेदर इज suitable, देन द प्रोडक्शन विल गिव, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन हमें मिल सकता है। अगर वेदर अनुकूल नहीं है तो हमें प्रोडक्शन उसकी नहीं मिलेगी, चाहे हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर लें।
टेक्नोलॉजी इसमें जैसे ट्रांसप्लांटिंग के लिए मशीन्स आ गई हैं अभी, उसका यूज होता है। उसके लिए अलग से हमें जो नर्सरी सोइंग करनी पड़ती है, वो भी एक लेबर कॉस्ट उससे बढ़ता है। जो हम नर्सरी के लिए सोइंग के लिए हमें पहले लेबर चाहिए। हाँ, जरूर ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें इतनी ज़्यादा लेबर नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम सोइंग करते हैं, क्योंकि जो मशीन्स हैं ट्रांसप्लांटिंग वाली, उसके लिए हमें स्पेशल ही नर्सरी सो करनी पड़ती है। उससे भी हमारा लेबर कॉस्ट है जो बढ़ता है। सबसे बेस्ट मेथड अभी तक डीएसआर ही है। सम फार्मर आर यूजिंग रिज मेथड, रिज ट्रांसप्लांटिंग मेथड, बट वो भी उससे पानी सेव होता है। दैट आल्सो हेल्प्स टू सेव वाटर, बट डीएसआर इज द बेस्ट टेक्निक। Okay. And how have traditional farming practices evolved to meet the demands of modern basmati rice cultivation? Can you repeat the question? How have traditional farming practices evolved to meet the demands of modern basmati rice cultivation? Ma'am, I'll if we talk post it in about, the chat box if you want. One second. not required. If we Okay. talk about traditional activities, cultural practices, if you've seen on YouTube, and some of the farmers are doing that, like they are tying some, what I can ask, like with the rope, उसको एक डंडे के साथ, उस रोप को दोनों तरफ से बांध लेते हैं। दे टाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट डंडा, एंड वो क्या करते हैं, जब टिलरिंग स्टेज होती है, शुरुआत होती है, उसके ऊपर से गुजर जाते हैं बिल्कुल। तो उससे क्या होता है कि जो टिलर्स हैं वो ज़्यादा निकलते हैं। जैसे कॉटन में क्या, सॉरी मैं कॉटन की बात कर रहा हूँ, इसमें कॉटन में क्या रहता है कि जब उसकी एक हाइट हो जाती है, नी हाइट से ऊपर हो जाती है, तो 60 से 70 दिन के ऊपर से हम उसका प्लग कर देते हैं। उसकी जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ग्रोइंग टिश्यू होता है, तो उससे क्या होता है कि उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, वेजिटेटिव ग्रोथ उसमें। फिर उसके बाद में बॉल्स भी ज़्यादा आती हैं। तो उसी तरह इसमें जब वो रोप के जरिए, उस डंडे के जरिए ऊपर से गुजरते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि उसकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये एक मेजर प्रैक्टिसेस है जो फार्मर्स करते हैं उसके जरिए। Okay. Next question is, can you highlight any sustainable practices or techniques that have been adopted by basmati rice farmers? Sustainable practices. Yes. Hello. Yes, it is sustainable practices. Hello. Actually, ma'am, sustainable practices, farmers should use sustainable practices, but many of the farmers are not using, like as we talked earlier, that they are doing the same things. अगर उनको एक बार उनसे कोई गलती हो भी गई किसी कल्टीवेशन में, वो फिर भी वही सेम चीज रिपीट करते हैं। दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स। सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो फर्टिलाइज़र है वो हमें बिल्कुल जो रिकमेंडेड डोजेस हैं उसे ही डालना चाहिए। ग्रीन मैन्योरिंग का यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ अगर हमें कोई कंपोस्ट अगर हम डालते हैं तो उसका हमें यूज़ करना चाहिए। अगर ये चीज़ें हम डाल रहे हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर रहे हैं या कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो
हमें फर्टिलाइजर की जो मात्रा है वो भी उसके साथ साथ कम करते करते रहना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होगा कि सॉइल डिग्रेड नहीं होगी और वाटर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी फील्ड की ज़्यादा हो जाती है उसके साथ, अगर हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर हम दूसरी बात करें तो फार्मर को जो पानी है वो बहुत स्मार्टली यूज़ करना चाहिए। जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि राइस को या बासमती को तब चाहिए पानी, एक तो पहले 7 दिन या 10 दिन इनिशियली डेज होते हैं तब चाहिए, और उसके बाद जब फ्लावरिंग टाइम रहता है, जब बूटिंग स्टेज आती है उसके बाद फ्लावरिंग टाइम रहता है, तो तब इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, लाइक 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रखना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर हम ये टेक्निक यूज़ करेंगे, स्मार्टली पानी क्या यूज़ करेंगे, तो पानी की सेविंग भी होगी, ये भी सस्टेन होगा हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, सॉइल डिग्रेड भी नहीं होगी। तो ये सब हमें, इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। Okay. And just couple of more questions. Okay. Are there any challenges specific to organic basmati rice cultivation, and how are farmers addressing them? The major challenge is loss in production in organic farming of basmati cultivation, because it is not possible in initially years that we can get uh, more yield with organic farming, because जो हमारी ज़मीनें हैं वो भी एक तरह की, उनको भी लत लग गई है, जैसे कि some person is taking drugs from many years, he can't stop within a day, within a 2 day or within a 3 day. सो ये चीज़ें हमें मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब यही है कि हम कंपोस्ट से, नेचुरल चीज़ों से ही जो प्रोडक्शन करें। तो इनिशियली 2-3 साल 4 साल तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 साल बाद वो प्रोडक्शन अपने आप वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि अगर हमारी जो ज़मीन है उसमें ऑर्गेनिक कार्बन प्रॉपर होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ज़मीनें हैं उसमें ऑर्गेनिक कार्बन ही, उसकी जो मात्रा है वो ही बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रही है। उसके कारण भी हमारी जो फसल है वो समय से पहले मर जाती है। जैसे अगर हम कॉटन की बात करें, इनिशियली टाइम में वो उसको रूट रॉट हो जाती है। वो दिक्कत ही यही है कि उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत बड़ा मेन चैलेंज तो यही है कि उसमें प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी। फिर दूसरा उसमें ऐसे है कि हमें दूसरी केमिकल वाली में हम हर्बिसाइड्स यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मैम। ऑर्गेनिक फार्मिंग छोटे फार्मर के लिए बहुत इतनी आसान नहीं है। बड़ा फार्मर, बिग फार्मर कैन डू दिस, बट स्मॉल फार्मर कांट, because he can't meet her him needs, जो उसकी डेली नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। सो इट इज़ ए मेजर चैलेंज। गवर्नमेंट कैन हेल्प इन दिस, लाइक प्रोवाइड सम फाइनेंस का वो कर सकते हैं उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग की मूव करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो मेनली मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन ही मेन है, उसमें प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि हमें भी वो आदत है, हमारी नीड्स भी बढ़ गई हैं, उसी तरह हमारी ज़मीनों की नीड्स भी बढ़ गई हैं। Okay. And yeah, how do you see the future of basmati rice cultivation evolving in response to ongoing challenges and technology advancements? फ्यूचर चैलेंज मैम,
some diseases like we talk on Wakani disease, and the another one is pesticides, because many of the pesticide उनका जो रेजिड्यू है वो इनके ग्रेन्स में रहता है, जिसके कारण इसकी जो अब एक्सपोर्ट वैल्यू है वो नहीं रहती इंटरनेशनल मार्केट में। उसके लिए फार्मर्स गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट बैन भी किए हैं, जैसे ट्राइसाइक्लाजोल, प्रोपिकोनाजोल, कार्बेंडाजिम। लेकिन उसमें ऐसे है कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट, लगभग सारे प्रोडक्ट अभी भी वो मार्केट में चल रहे हैं। तो फार्मर फार्मर को एक्सपोर्ट का नहीं है, उन्होंने तो मिडिल मैन को दे देनी है, सेल कर देनी है अपनी चीज। लेकिन जब एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं होगी उसकी, तो उसकी प्राइस भी लो रहेगा। और दूसरा, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इसके ऊपर एमएसपी प्राइस दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे। उसके साथ क्या होगा कि एक तो फार्मर को पता होगा कि हाँ, जैसे दूसरी नॉर्मल राइस की है या वीट की है कि इतना तो मेरा बिकेगा ही बिकेगा। कुछ साल तो ये बढ़िया देती है प्राइस, जैसे इस साल दिया है, उससे पिछले साल अच्छा था। एक दो साल के बाद ये फिर इसका प्राइस है वो डिक्रीज होगा। तो वो फार्मर है, वो अपने आप को एक तरह का वो फार्मर फेलियर होगा। वो अपनी नीड्स नहीं कंप्लीट कर पाएगा, सुसाइड बढ़ेंगे उससे। तो ये एक मेजर चैलेंज है कि एक तो डिजीज, उसके साथ साथ जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ब्रीडर है, उनको बहुत बढ़िया ऐसी आनी वैरायटीज आनी चाहिए जो बकाने रेजिस्टेंट हो, जहाँ उनको नई कोई भी डिजीज हो वो कम लगे। उससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर पेस्टिसाइड और फंगीसाइड की जरूरत नहीं होगी। और दूसरा, मतलब फार्मर्स अभी ऐसा है कि टोटली डिपेंड हो गए हैं केमिकल्स पर ही, हर्बिसाइड पर, फंगीसाइड पर, पेस्टिसाइड पर। उनको गाइड करना बहुत जरूरी है। हर गांव में गवर्नमेंट शुड ऑर्गेनाइज कैंप that they can teach them, like when you should use fertilizer, when you should use fungicides, when should you use pesticide, what is the correct time. Like I told earlier that if we should manage the blast disease, we should spray chemicals like strobin groups or joel groups on boot stage or air emergence stage. So we should teach farmer first। टेक्नोलॉजी बहुत है, टेक्नोलॉजी अगर आएंगी उससे फार्मर को इतना फायदा नहीं होगा अगर उनको उनके बारे में उनको एजुकेशन ही नहीं होगी उसकी, हमें करना कैसे है। अगर फार्मर उनको उन जानता होगा टेक्निक्स को, क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे वीट में जो सुपर सीडर है वो बहुत टाइम पहले का आया हुआ है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की या संस्थाओं की ऐसी मतलब ये कमी रही है कि उन्होंने वो प्रॉपर मार्केट में उसको लेकर नहीं आए। सुपर सीडर तो अभी 2-3 साल से ज्यादा हुआ है ना, सॉरी। लेकिन ये लगभग सुपर सीडर की इनोवेशन 7-8 साल से पहले हो चुकी थी, इससे भी शायद ज्यादा। तो ये एक मैं फेलियर कहूंगा हमारी गवर्नमेंट का कि उनको फार्मर को एजुकेशन देना इज मस्ट। अगर उनको पता होगा कि क्या चीज हमें कैसे यूज करनी है, पानी का कैसे इस्तेमाल करना है, तो वो अपने आप ही समझदार होंगे, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उससे कम होगा, पेस्टिसाइड का यूज कम होगा, सॉइल डिग्रेडेशन नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हैं। Okay. Okay, 1 second. Okay, Mr. Gurpal, I don't see any more questions. Before we end, I'll check with other current participants. Mr. Prabhu, anything you would like to ask before we end? No, ma'am, all good. Okay. Mr. Vijay? No, thank you. Actually, a very important point that he said is the disconnect between the farmers and what they should be doing.
So the training part, what he mentioned, is really very, very significant. I think if the training is not done and the farmers are not aware what has to be done, then definitely the challenge will continue to be there. I think it's a very significant point that he mentioned. And the organic carbon content, which is continuously going down, not only in, or even I'm from South, a lot of places we have this challenge of organic carbon coming down. So all practices leading to improvement in organic carbon will definitely help us in the long run. Thank you very much, sir, for the nice presentation. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay, Mr. Gurpal, I don't see any more questions from our editorial team. So now we have come to end of question round. On behalf of agricultureinformation.com, we'd like to thank you for a nice presentation and answering all the questions. And we also like to thank all the participants for joining this meeting. The meeting will now be closed. Have a good evening. Thank you. Thank you. Thank you so Thank you. much. Bye-bye.